Hello students, welcome to class 9, subject science, chapter number 5, the fundamental unit of life. So, the basically fundamental unit of life is called cell. Okay, so now let's understand why cell is called the fundamental unit of life. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke showed that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. This was in the year 1665 when Hooke made this change observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called this boxes cells. Cell is a Latin word for a little room. तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो कॉर्क होता है ना, जो ट्री का बार्क में से जो निकलता है वो कॉर्क, उसको उन्होंने क्या किया, उसको ना उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा. ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखा तो वो जैसे कि हनी बीज जो रहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मधुपूरा गुजराती में बोले ना, हाँ, तो मतलब कि उसके जैसा ना स्ट्रक्चर मतलब कि ना उसका देखने के लिए मिला. तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से ना ये जो कॉर्क बना हुआ है उसने ये ऑब्जर्व किया. ओके, तो ये जो उसने छोटे छोटे जो बॉक्सेस है उसने उसको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेल बोला. एंड सेल का मीनिंग लैटिन वर्ड में क्या होता है, लैटिन वर्ड क्या है, सेल इज़ अ लैटिन वर्ड ऑफ फॉर अ लिटिल रूम. This may seem to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appeared to consist of separate units. The use of word cell to describe these units is called till this day in biology. तो मतलब कि ये जो जब उसने देखा ना, मतलब कि ये तो साइंस की हिस्ट्री में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके, और अभी भी बायोलॉजी में इसका हम यूज़ कर रहे हैं. नाम क्या दिया है, सेल नाम दिया है. ओके, लेट अस फाइंड आउट अबाउट द सेल. तो अभी ये सेल क्या है उसके बारे में जानते हैं. सो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. Let us take a small piece from an onion bulb. With the help of pair of forceps, we can peel off the skin called the epidermis from the concave side of the onion. This layer can be put immediately in a watch glass containing water. This will prevent the peel from getting fooded or getting dry. What do we do with this peel? Let us take a glass slide and put a drop of water on it. Transfer a small piece of pill from the watch glass to the slide. Make sure that the pill is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paintbrush might be necessary to help transfer the pill. Now we put a drop of saffron solution on this piece followed by the cover slip. Take care to avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of mounting needle. Ask your teacher for help. We have prepared a temporary mount of onion pill. We can observe that the slide under low power followed by high powers of compound microscope. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जो ओनियन है ना उसको पिल ऑफ करके, मतलब कि उसके ऊपर की जो छिलके होते हैं ना उसको निकाल दिया. देन उसका एक स्मॉल पीस, मतलब ना उसको काट के उसका एक स्मॉल पीस उन्होंने ना एक ग्लास स्लाइड में ले लिया और फिर उसके अंदर ना थोड़ा सा पानी डाल के रखा. ठीक है, और फिर उसको क्या किया उन्होंने, यहाँ पे ये जो माइक्रोस्कोप यहाँ पे है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें उन्होंने देखा कि वो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है. ओनियन की जो पिल ऑफ किया था ना, जिसको हमने काट के वहाँ पे रखा ग्लास स्लाइड में, उसका स्ट्रक्चर कैसे रखा है. तो यहाँ पे व्हाट डू वी ऑब्जर्व, जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब क्या होता है, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, वी लुक थ्रू द लेंसेज. Can we draw the structures that we able to see through the microscope on the observation sheet? Does it look like figure 5.2? तो यहाँ पे जब हमने 5.1 जो ये माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें हमने जब देखा तो हमको कैसा, वहाँ पे ओनियन का जो पिल है उसके सेल्स दिखी. यहाँ पे फिगर 5.2 में दिया गया है कि ओनियन पिल है, उसके जो सेल्स है वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये जो छोटे मतलब ना एक तरह का बॉक्सेस टाइप यहाँ पे दिख रहा है ना, और यहाँ पे मिडल में क्या है, न्यूक्लियस है सेल का. सो
which can try preparing temporary mounds of peel of different onions of different size. What do we observe? Do we similar structures or different structures? Do we see similar structures or different structures? तो यहाँ पे देखिए, फिर यही एक्सपेरिमेंट आप अलग अलग साइज़ के जो ऑनियन है, मतलब कि छोटा ऑनियन बड़ा ऑनियन उसके साथ करो, तब क्या देखने के लिए मिलता है? क्या वो सेम साइज़ के स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे फिगर 5.2 में जैसे दिखे हैं वैसे ही देखने के लिए मिल रहे हैं, या फिर स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है? तो यहाँ पे व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स? द स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर. The structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulbs of different size have similar small structures visible under the microscope. The cells of onion peel will all look the same regardless the size of onion they came from. तो यहाँ पे हम जिस भी साइज़ का जो ऑनियन है उसको लेके उसका जो बल्ब है उसको काट के अगर हम ग्लास स्लाइड में रखेंगे तो हमको वैसा ही स्ट्रक्चर जैसे फिगर 5.2 में देखने के लिए मिला है ना, अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वैसा ही स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलेगा. ओके, और कोई उसमें चेंज नहीं आएगा, जैसा है वैसा. और यही छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स है, मतलब कि यही जो सेल है वो पूरा का पूरा क्या बना रहे हैं? ओनियन को फॉर्म कर रहे हैं. ओके, पूरा का पूरा ओनियन बल्ब बना रहे हैं ये जितने भी सेल्स है वो मिलके. द स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर बेसिक बिल्डिंग्स यूनिट ऑफ ओनियन बल्ब. द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स. और ये स्ट्रक्चर्स को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया. नॉट ओनली ओनियन बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स. However, there are also single cells that live on their own. तो यहाँ पे सिंगल सेल वाले भी जो क्या बोलते हैं, कुछ बैक्टीरिया या फिर अमीबा हो गया, ओके, वो सिंगल सेल पे ही रहते हैं. उनकी जो पूरी बॉडी है ना उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है. ओके, एक से ज़्यादा नहीं. जैसे कि यहाँ पे वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ना, कितने सारे हैं ओनियन में, मल्टी सेल्यूलर है वो, कितने सारे बॉक्सेस देखने के लिए मिल रहे हैं. वैसे ही यूनिसेल्यूलर मीन्स कि एक ही सेल से बना हुआ हो. ओके, तो ऐसे कितने बैक्टीरिया होते हैं, कितनी मतलब कि जैसे कि अमीबा एग्जाम्पल हो गया, तो अमीबा है, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो किससे बने हैं? सिर्फ और सिर्फ वन सेल से बने हुए हैं. ओके, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. He observed the cells in cork slice with the help of primitive microscope. तो सेल्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? अगर वो पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में. किसकी हेल्प की मदद से? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में उसने देखा था. ओके, लुईन हॉक विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फ्रॉम द फर्स्ट टाइम. तो उसने जो क्या बोलते हैं, रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखे थे ना वो डेड सेल थे, क्योंकि जो मतलब जो कॉर्क है उसके जो सेल होते हैं वो डेड सेल्स देखे थे. ओके, और ये जो नया जो है लुईन हॉक ने उसने क्या किया, जो पॉन्ड वाटर है उसका सेल देखा, पॉन्ड वाटर में से तो उसका सेल देखा, तो उसने लिविंग सेल्स देखे थे फर्स्ट टाइम. अगर आपको ये पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स फर्स्ट, देन इज लुईन हॉक. ओके, then it was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. तो सेल के अंदर ना कोई फ्लूइड है उसको उसने क्या नाम दिया है? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया है. द सेल थियोरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट. Schleiden and Swan. The cell theory was further expanded by Virchow by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. With the discovery of electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structures of cell and its various organelles. तो यहाँ पे ये जो सेल थ्योरी है उसको फर्स्ट किसने दिया था? कौन से दो बायोलॉजिस्ट ने दिया था? स्लाइडन एंड स्वॉन ने 1839 में दिया था. एंड ये जो सेल थ्योरी है उसमें क्या बोला है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो सब किससे बने हैं? ये सेल्स से बने हुए हैं. ओके, देन उसके बाद में विर्चाव ने इसी सेल थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड किया था और उसने क्या बोला कि ये जो सेल है ना, जो दूसरे नए सेल बन रहे हैं वो पहले प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स है उससे ही बन रहे हैं. ओके, अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल.
The invention of magnifying lenses led to the discovery of microscopic world. It is now known that single cell may constitute a whole organisms, as in amoeba, Chlamydomonas, Paramecium, and bacteria. These organisms are called unicellular organism. uni equals to 1. तो यहाँ पे ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ सिंगल सेल से ही बने हुए हैं. ओके, एक ही सेल है जिसमें, ज़्यादा नहीं है. जैसे कि वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस ओनियन पील्स में फिगर 5.2 में हमने देखा था ना, वो सिर्फ एक ही है. ऐसे कुछ बैक्टीरिया है जैसे कि अमीबा हो गया, देन क्लैमिडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया. ओके, तो उसमें क्या है, फंगी हो गया. कुछ ऐसे फंगी भी है जो क्या है, यूनिसेल्युलर मीन्स कि सिंगल सेल ही है उनमें. ओके, ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल body and assumes different functions in it to form various body parts in multicellular organism. Multi means many, such as some fungi, plants and animals. Can we find out some more name of unicellular organisms? Every multicellular organism has come from a single cell. How? Cells divide to produce cells of their own kind. All cells thus come from pre-existing cells. ओके, तो ये जो फर्दर एक्सटेंडेड जो वॉल्चाम ने जो सेल थ्योरी दी थी, उसमें क्या बोला था उसने कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टेंट सेल से ही बने हुए हैं. ओके, कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. और मल्टी सेल्यूलर का मीनिंग क्या है, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. ओके, ज़्यादा बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं. एंड यूनिसेल्यूलर का मीनिंग क्या है, तो मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल. ओके, देन यहाँ पे activity we can try preparing temporary activity 5.2 we can try preparing temporary mounds of leaf peels, tip of roots of onions, or even peels of onions of different size. After performing the above activity, let us see what the answer to the following question would be. Do all cells alike in the terms of shape and size? Do all cells look alike in structure? Could we find difference among cells from different parts of plants and body? What similarity could we find? Some organism can also have cells of different kinds. तो कुछ ऐसे भी organism है जिसमें क्या है, cells different kind के cell है. Look at the picture. It depicts some cells from the human body. तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स है ना, वो उसका पिक्चर यहाँ पे आपको 5.3 में गिवन है. तो यहाँ पे देखिए, क्या ये सारे के सारे सेल्स डिफरेंट नहीं दिख रहे हैं क्या? ये डिफरेंट दिख भी रहे हैं एंड और इनका काम भी क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, वो डिफरेंट वर्क भी कर रहे हैं, फंक्शन भी उनके डिफरेंट है. यहाँ पे देखिए स्मूथ मसल सेल है, वो कैसा दिखता है. देन वो ब्लड सेल्स, WBC RBC जो ब्लड में होते हैं. देन ये नर्व सेल्स, वो हमारी बॉडी में और सबसे ज़्यादा माइंड में. ओके, देन ओवम, देन बोन सेल, स्पर्म, फैट सेल. ये फैट सेल फैट स्टोर करने का काम करता है, उसको एडिपोज टिश्यू मतलब कि जो भी वो आगे आप लोग पढ़ेंगे. ओके, तो ये डिफरेंट काम कर रहे हैं. ये जितने भी सेल्स हैं ना, डिफरेंट दिख भी रहे हैं और इनका जो फंक्शन है वो भी एक दूसरे से अलग है. ओके, देन the shape and the size of cells are related to the specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shapes. In some cases the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cell has a typical shape. Each living cell has capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. How does a living cell perform these basic functions? We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. Division of labor का यहाँ पे meaning क्या है? तो यहाँ पे this means that different parts of a human body performs different function. तो ह्यूमन बॉडी की जो डिवीजन लेवल का मीनिंग क्या है कि डिफरेंट जो पार्ट्स है हमारी बॉडी के, वो डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं. ओके, दे परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट का यूज़ होता है. अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन. सिमिलरली डिविजन ऑफ लेबर इट इज़ सीन विद इन अ सिंगल सेल. In fact, in each
such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. Each kind of cell organelles perform a special function, such as making a new material in the cell, clearing up the waste material from the cell, and so on. A cell is able to live and perform all its function because of this organelles. तो ये जो सेल है, जो जितने भी काम कर रहा है ना, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, वो किसकी वजह से कर रहा है? ये ऑर्गेनल्स की मदद से कर रहा है. दिस ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल. तो ये जो ऑर्गेनल्स है वो साथ में मिलकर क्या बना रहा है? सेल बना रहा है. टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल. It is interesting that all cells are found to have some organelles, no matter what their functions is or what organism they are found. ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है वो दो आप लोगों को खुद फाइंड करना है एंड देन उसके बाद में उसको आपकी नोटबुक में राइट करना है. ओके ओके, व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल? तो ये जो सेल है वो किससे बने हुए हैं? ओके, उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? वी शो दैट द सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स. जैसे कि आगे के पैराग्राफ में हमने देखा कि सेल के पास क्या है? एक स्पेशल कंपोनेंट्स है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स. हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज? तो ये सेल को ऑर्गेनाइज कैसे करता है? सो इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन almost every cell: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा. तो जब भी हम जो सेल है उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो ये जो तीन चीज़ें यहाँ पे गिवन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा. जब भी हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तब ये तीनों उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं. ओके, ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विथ इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स. लेट अस सी हाउ. तो अभी ये जो तीन जो फीचर्स है सेल के अंदर उसके बारे में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट फीचर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स कंपोनेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो ये जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल है उसका आउटर मोस्ट जो कवर है उसको बोलते हैं. ओके, और वो क्या कर रहा है? उसका काम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. इसको अंडरलाइन कर देना. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट्स ऑफ सम अदर मटेरियल्स. द सेल मेम्ब्रेन therefore is called a selectively परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम कर रहा है? सेल के अंदर क्या अंदर आ रहा है और क्या बाहर जा रहा है वो देखने का, वो ही अलाउ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कि हाँ तुम जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते. ओके, ऐसे करके जो भी कंपोनेंट्स है जो सेल के अंदर जा रहे हैं, ओके, जो भी मटेरियल सेल के अंदर जा रहा है, और वो कुछ मटेरियल को जाने से रुकता भी है जो सेल के लिए, जिससे सेल को कुछ नुकसान हो. ओके, तो इसीलिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे इसी पैराग्राफ में आपका आंसर है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. Okay, it also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. How does the movement of substance take place into the cell? How do substance move out of the cell? Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. तो कुछ सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर कैसे जाते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू. तो यहाँ पे वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन द अर्लियर चैप्टर. वी शो दैट देयर इज अ spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region of where its concentration of low. ओके, तो डिफ्यूजन में क्या होता है? यहाँ पे जो हाई कंसनट्रेशन रीजन है वहाँ से मूवमेंट होना स्टार्ट होके कहाँ किस तरफ मूवमेंट होता है? लो कंसनट्रेशन का जो रीजन है वहाँ पे क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जो सेल है अगर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है
तो वो क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है सेल के अंदर, तो वो क्या करेगा, बाहर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, बाहर के साइड कंसंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन में क्या होगा, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से बाहर चला जाएगा। ओके, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट टुवर्ड्स दी लो कंसंट्रेशन रीजन। ओके, और अभी देखिए ऑक्सीजन है वो सेल में कम है लेकिन बाहर ज़्यादा है, तो क्या होगा, बाहर से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सेल के अंदर आता है। ओके, डिफ्यूजन की मदद से something similar to this happens in cell when, for example, some substance like CO2, which is a cellular waste and required to be excreted out by the cell, accumulates in high concentration inside the cell. In the cell external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the सेल। तो CO2 का कंसंट्रेशन सेल में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, वो वेस्ट है, सेल्यूलर वेस्ट एक तरह से, और वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाहर का जो रीजन है वो उसके कंपेयर में कम है, तो वो क्या हो जाएगा, as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside of a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases. तो O2 सिमिलरली देखिए CO2 क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, क्योंकि वो सेल का जो रीजन है, इनसाइड रीजन है, उसके अंदर CO2 ज़्यादा है, लेकिन आउटसाइड के रीजन में CO2 क्या है, कम है। उसी तरह से जब भी सेल में O2 मतलब कि ऑक्सीजन कम होता है और बाहर के साइड ज़्यादा है, तो बाहर से O2 अंदर के साइड चला जाता है। ओके, इनसाइड जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such selectively permeable membrane is called osmosis. तो यहाँ पे osmosis का definition क्या है? The movement of water molecules through a selectively permeable membrane or a plasma membrane is called osmosis. इसको अंडरलाइन कर दो। ओके, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। तो ये जो मूवमेंट है वाटर का परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो किस पे डिपेंड करता है। ओके, अफेक्ट किससे होता है कि जो वाटर के अंदर कौन से सब्सटेंस डिसॉल्व हुए हैं। ओके, दिस ऑस्मोसिस इज अ पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर concentration. What will happen if we put an animal cell or plant into a solution of sugar or salt in water? One of the following three things could be happen. तो जो एनिमल का सेल है या फिर प्लांट का सेल है, उसको कैसे सॉल्यूशन में मिला है, वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें हो सकती है। फर्स्ट क्या है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. तो अभी देखिए, वेरी डाइल्यूट का मीनिंग क्या है, वाटर ज़्यादा है उसके अंदर और सॉल्ट कम है। जैसे कि एक ग्लास है, उसके अंदर मैं मतलब कि 1 स्पून जितना शुगर डालती हूँ, और एक दूसरा ग्लास है, सेम अमाउंट का मैं वाटर ले रही हूँ दोनों में, और जो जितना फर्स्ट जो क्या बोलते हैं ग्लास है उसमें था उतना ही मैं सेकंड में लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट में हमने क्या किया था 1 स्पून जो हमने शुगर डाला था, और दूसरे में हम क्या करेंगे 20 स्पून जितना शुगर डाल देते हैं। तो अभी देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन जो फर्स्ट वाला ग्लास है ना, जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेयर टू शुगर, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, और वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं जिसमें शुगर ज़्यादा है। ओके, और ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक, तो उसमें क्या होता है, जो सेल है वो क्या करेगा, वाटर गेन करेगा। ओके, क्योंकि
हाइपोटोनिक, और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन will leave. The net result is water enters the cell and the cell is like to swell up. और जैसे ही वाटर सेल के अंदर वो एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, स्वेल अप, मतलब कि स्प्रेड होना, पूरा का पूरा फूल जाएगा, ठीक है, ऐसे बड़ा हो जाएगा, स्वेल अप होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसनट्रेशन एज द सेल, तो जो भी मीडियम में हमें जिस भी मीडियम में हमने सेल को रखा है, ओके, और उसमें जो कंसनट्रेशन है वाटर का वो उतना ही है जितना सेल के अंदर है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि डिफ्यूजन क्या है, लो रीजन से हाई रीजन से लो रीजन की तरफ का मूवमेंट है, ओके। और अभी यहाँ पे देखिए दोनों में कंसंट्रेशन सेम है, ओके, वाटर का जो कंसंट्रेशन सेल के इनसाइड है वो भी सेम है, और जिसमें रखा है, जिस सॉल्यूशन में रखा है उसमें भी सेम है, तो अभी यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। एंड सच अ सॉल्यूशन इज़ नोन एज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, okay. Water crosses the cell membrane in both directions, but the amount of going in is the same as the amount going out, so there is no overall movement of water. The cell will stay the same size, और cell है वो same size में ही रहेगा, okay. If the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that if the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such solution is known as hypertonic solution, ओके। तो जिस मीडियम में हमने सेल को रखा है, ओके, अगर वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन, वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कम है एंड सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, ओके, तो क्या करेगा, सेल वाटर को लूज़ करेगा, ओके। और ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट, और इस टाइम पे क्या होगा, सेल में ज़्यादा पानी है तो क्या हो जाएगा, बाहर के साइड जाएगा, ओके। एंटर जो वाटर हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा वाटर बाहर के साइड जाएगा, ओके, थ्रू डिफ्यूजन। तो थ्रू द डिफ्यूजन देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, तो इसी की वजह से, क्योंकि सेल से कुछ बाहर जा रहा है, इसी वजह से वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक्टिविटी 5.3 एंड 5.4 जो है, जो 5.3 है वो जो सेम हमने वाटर सॉल्यूशन, शुगर एंड वाटर का जो सॉल्यूशन लिया था उसके साथ की, यहाँ पे उन्होंने एग के साथ किया है, ओके, एंड देन यहाँ पे उन्होंने रेजिन्स के साथ किया है। Unicellular fresh water organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plants root is also an example of osmosis. तो plants के जो root है जो water का absorb कर रहे हैं ना, वो भी osmosis का ही एक क्या बोलते हैं example है, क्योंकि जो plants के जो cell है, ओके, वहाँ पे water कम है, लेकिन ज़मीन में जो भी मतलब कि जो भी ज़मीन है उसके अंदर वाटर ज़्यादा है, तो वहाँ से क्या करेगा, पानी अपने अंदर लेगा, ओके। तो यहाँ पे वाटर को जो प्लांट्स के रूट्स एब्जॉर्व कर रहे हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस का ही है। दस डिफ्यूजन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. The plasma membrane is a flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. तो यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ है। However, we can observe the structures of plasma membrane only through a microscope, electron microscope. तो ये प्लाज्मा का जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, ओके। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटीरियल्स फ्रॉम इट्स environment, external environment. Such processes are known as endocytosis. Amoeba acquires its food through such process. तो अमीबा किस प्रोसेस से अपना फूड एक्वायर कर रहा है, तो एंडोसाइटोसिस से, ओके। तो ये आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सेल वॉल एंड न्यूक्लियस उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।